مسافر قسط نمبر 66 مسافر قسط نمبر 66 بیوی نے دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ وہ نفرت بھری نگاہ چندو پر ڈال کر صحن میں چلی گئی۔ عمر حیات نے اپنا سر ماں کے گھٹنوں پر رکھ دیا اور ٹیپ پلیئر کی طرح بولنے لگا۔ پہلی نظر سے آخری واردات تک اس نے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ خاموش ہونے سے پہلے بولا، بی بی، بابا کہتے تھے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے۔ ظرف والا کبھی کم ظرفوں کی قطار میں کھڑا نہیں ہوتا۔ میں اسی بابا کا خون ہوں۔ میں نے نادانی میں ایک جرم کیا جس کی پاداش میں گامن کا گھر تباہ ہو گیا۔ میرا بابا روٹھ گیا۔ میں مجرم ہوں۔ مجرم کو اپنی سزا خود ہی تجویز کر لینی چاہیے اور اب قبول بھی۔ یہ بابا نے سمجھایا تھا مجھے۔ میں چندو ماہی کا مجرم ہوں۔ یہ بولتی نہیں۔ میں سچ کہنے سے ڈرتا نہیں ہوں۔ سچ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے لیے عمر قید کی سزا تجویز کر لی ہے۔ میں نے چندو ماہی کو اپنی دلہن بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر آپ میرے سر پر ہاتھ رکھ دیں گی، دعاؤں کا ساتھ دیں گی تو میں کبھی نہیں مروں گا۔ اگر ہاتھ کھینچ دیں گی تو نہ صرف زندگی بلکہ میری سزا کا دورانیہ بھی کم ہو جائے گا اور میں وقت سے پہلے مر جاؤں گا۔ ماں تڑپ کر رہ گئی۔ چندو کو بنظر غور دیکھنے لگی۔ بیٹے کے بال مٹھی میں بھر کر جھٹکے دینے لگی۔ بولی، فیصلہ کرتے ہو تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ تم کتنے بڑے باپ کے بیٹے ہو؟ اس چھوہر کے آگا پیچھا خالی ہے۔ یہ کر حویلی میں جائے گی تو ہر کوئی ہم پر تھو تھو کرے گا۔ رشتہ دار حویلی میں قدم نہیں رکھیں گے۔ کیا زمانے سے کٹ کر زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ وہ عزم سے بولا، اگر میں اس لیے بڑا گنا جاتا ہوں کہ میرا باپ بڑا تھا تو کیا چندو میرے نام سے بڑی نہیں ہو جائے گی؟ نہیں بیٹا، نام و نسب اور شادی میں بڑا فرق ہے۔ بیٹا اڑ گیا۔ نسبت تو نسبت کا عنوان ہے۔ جب چندو میری نسبت سے دیکھی جائے گی تو حویلی کی سائن قرار پائے گی، تب کوئی انگلی اٹھائے گا۔ پورا وسیب جانتا ہے کہ چندو بن باپ کی چھوہر ہے۔ اس بات کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ بی بی، انصاف کرو کہ چندو کو اس جرم کی سزا دی جا سکتی ہے جو اس نے کیا ہی نہیں۔ انصاف خدا کرتا ہے کہ گونگا بہرا پیدا ہونے والا بچہ از خود ادھورا ہوتا ہے۔ تمام عمر معذوری کی سزا تو اسے جھیلنا ہی پڑتی ہے۔ اس کو ساری عمر یہ تانا جھیلنا ہے۔ اگر یہ حویلی میں نہیں جا سکتی تو میں اسے کہیں دور لے جاتا ہوں جہاں اس کے ماضی پر لا علمی کا پردہ پڑ جائے گا، جہاں اسے رہنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں وہی حویلی بنا لوں گا۔ اب تو آپ کو گلہ نہیں ہوگا نا جب ماں اور 4 بہنوں کو چھوڑ دو گے؟ ماں کی آنکھیں استجاب آمیز دکھ سے پھیل گئی۔ نہیں، میں سب کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ایک لڑکی کے لیے وسیب چھوڑ دو گے؟ وسیب تو کیا اماں، میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ کو میری بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس کے لہجے میں عجیب عزم آمیز بے بسی رچ گئی۔ ماں کو امید بار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، بی بی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ مجھے گھر سے نکال دیں، مارے پیٹے، جو چاہے میرے ساتھ کرے، آپ کو حق ہے، مگر خدا کے لیے مجھ پر دعا کا دروازہ بند نہ کریں۔ ماں کا دل پسیج گیا۔ اسے کھینچ کر چھاتی میں چھپاتے ہوئے بولی، میرا دنیا میں تمہارے سوا کوئی نہیں۔ میر صاحب زندہ ہوتے تو مجھے کوئی فکر نہ تھا۔ اب پتہ گرے تو دل خوف سے دھڑکنے لگتا ہے۔ اگر تم نے چندو کو ہی بیوی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں اس فیصلے کو قبول کرنے کا اعلان کرتی ہوں، مگر تم دونوں کو میری ایک بات ماننا ہوگی۔ بولو، منظور ہے؟ دونوں نے یک بارگی اس بات میں سر ہلایا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولے، نہیں، ایسے نہیں، منہ سے اقرار کرو۔ دونوں نے بیک بک کہا، منظور ہے۔ ماں نے 3 مرتبہ اقرار لیا، پھر کہا، میرا حکم یہ ہے کہ تمہاری شادی 3-4 سال بعد ہوگی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بہو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، میچور ہو۔ دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ عمر بولا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اب وہی کہہ رہی جو اس موقع پر موزوں ترین ہے۔ دیکھو بیٹا، سیانے کہتے ہیں کہ پھل موسم کا اور شادی جوانی کی اچھی لگتی ہے۔ تم دونوں کم عمر ہو، شادی کے قابل نہیں ہو۔ چندو ماہی گریجویشن کر لے، تب میں اپنے ہاتھوں سے بڑی دھوم دھام سے تمہاری شادی کروں گی۔ عمر نے سوچا، چندو کو گریجویشن کرنے میں 5 سال کا عرصہ حائل تھا۔ عشق کی سولی پر چل کر اتنا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کنکھی سے چندو کو دیکھا۔ اسے آنکھوں کے اشارے سے سمجھایا کہ بی بی کا کہا مان لو۔ وہ بولا، آپ شاید بھول گئی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ چندو ماہی کو واپس نہیں بھیجا جا سکتا۔ گامن نے اس پر اپنا دروازہ بند کر دیا ہے۔ بی بی اماں بولی، تو کیا ہوا؟ یہ واپس نہیں جائے گی؟ میں اسے اپنی حویلی میں لے جاؤں گی۔ میٹرک کے بعد کالج میں داخل کراؤں گی۔ اس کی خواہش ہوئی تو ملتان میں بھی رہ سکتی ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر حویلی کی رانی بنا کر لے آؤں گی۔ تب تک لوگوں کی حیرانی بھی کمزور ہو چکی ہوگی۔ عمر نے انکار کیا۔ لمبی سانس لے کر بولا، نہیں بی بی، آپ مجھے دھوکہ دے رہی ہیں، وقت لے رہی ہیں۔
ताकि मेरे सर से चंदू के इश्क का भूत उतार सकें। यहाँ आप गलती पर हैं। ठीक है, ऐसा ही सही। मोहब्बत वक्त की मोहताज नहीं होती। तो मुझे पर अपनी मोहब्बत की सच्चाई साबित करो, इंतज़ार की ताकत से मेरे धोखे का तोड़ करो। नहीं बीबी, ये मुझसे नहीं हो सकता। तुमने मेरी बात मंजूर करने का 3 मरतबा इकरार किया है, पाँव पर मुकर गए हो, उल्टा मुझे धोखेबाज कह रहे हो। माँ के लहजे में गहरी काट छुपी हुई थी। दिल को आप पर यकीन नहीं आ रहा। ना करो, अपनी मोहब्बत पर यकीन करके चंदू को हवेली में ले चलो। अगर तुम 4-5 साल बाद भी चंदू से मोहब्बत का दावा करोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। हम बिल्कुल ऐसे ही लाचार होंगे जैसे आज हम सब तुम्हारे फैसले के सामने बेबस हैं। बीबी अम्मा ने उसकी मोहब्बत को ललकारा और कहा, देखो बेटे, क्या तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी बीवी पढ़ी लिखी हो, कच्चे सोने के बजाय कुंदन हो। यकीनन अपनी मोहब्बत को हर मर्द खूबसूरत और मौत पर देखना चाहता है। मेरा भी अरमान है। मैं चाहती हूँ कि वो लड़की मेरी बहू बने जिसे ज़माना रुक कर देखने पर मजबूर हो और मीरजादी कहकर पुकारते हुए किसी के होंठों पर तंज़िया मुस्कुराहट ना हो। चंदू ने पहली मर्तबा जुबान खोली, मेरे को मंजूर है। बीबी ने उसे खुशी और मान से देखा, बोली, ये हुई ना अक्लमंदी वाली बात। अब अपने दीवाने को भी समझाओ कि मेरी बात मान ले। 3 कोल देकर मुकरने वाले को खुदा भी माफ नहीं करता। चंदू माही की मुल्तमस नजरें अपने दीवाने पर उठी। चल हमें एक टक देखती है, फिर बोली, बीबी सैन की बात मान जाए, मुझे यकीन है कि इसी में हमारा ही फायदा है। उसके चेहरे पर तजब्जुब रकम हो गया। चलने तक सोचता रहा, फिर लंबी सांस फेफड़ों में उतार कर बोला, जिन पत्तों पर तकिया हो वही हवा देने लगे तो पाँव उखड़ जाते हैं। ठीक है बीबी अम्मा, मैं आप पर एतमाद करते हुए आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अगर मेरी चंदूमाही के साथ कोई ज्यादती की गई तो मैं अपने वादे पर कायम नहीं रहूँगा। माँ ने एक नज़र अपनी सुर्खी माइल कलाई को देखा, जिसमें बेटे की गिरफ्त मजबूत गिरफ्त साबित हो गई थी। इसे गिरफ्त ने समझाया था कि सख्ती करोगी तो शीशे को तोड़ बैठोगी। तभी वो पैंतरा बदलने पर मजबूर हुई थी। मुस्कुराकर बोली, वो मोहब्बत नहीं, जुर्म है जो 2 घरों को बर्बाद और बदनाम कर दे। वो बेहयाई होती है। मीर जफर हयात के खून में ऐसी मोहब्बत नहीं पल सकती, ये मुझे यकीन है। इसी यकीन की लाठी टेकते हुए हवेली जा रही हूँ। तुम दोनों को शाम तक सोचने की मोहलत देती हूँ। अकेले बैठोगे तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। अगर तुम लोग ख़ानदान की बदनामी और रसवाई से बचाना चाहो तो हवेली में आ जाना, वरना जहाँ जी चाहे चले जाना। मैं चंद दिन रोध होकर सब्र कर लूँगी। उमर हयात, तुम्हारी बहनें भी सोच लेंगी कि उनका कोई भाई पैदा नहीं हुआ था। अब मैं चलती हूँ। माँ बेटे को गंवाने नहीं लेने के लिए आई थी, मगर चंदू की झोली में डालकर जाने लगी थी। चंदू उसके कदमों में झुक गई, गुलूगीर आवाज़ में बोली, बीबी सैन, आप जो कहेंगी हम वही करेंगे। बीबी ने पैरों में बैठे हुए चंदू को शानों से पकड़कर खड़ा किया। देखा, वही थी जो कभी आंखों को बहुत भली लगती थी। वही थी जिसकी तारीफें आपो आप इसके लबों से फूटने लगती थी। उसे याद आ गया कि एक मर्तबा उसने मीर जफर हयात से कहा था, मीर साहिब, अगर मुमकिन हो तो आप गामन से चंदू माही गोद ले लें। मुझे बहुत अच्छी लगती है। जहाँ मेरी 4 बेटियां हैं, उसे 5वीं समझ लूँगी। मीर साहब ने हंसकर कहा था, तुमने गामन की मोहब्बत को महसूस करने की कोशिश नहीं की, वरना ऐसी बात तुम्हारे लबों पर ना आती। क्या तुमने नहीं देखा था कि वो कितने लाड और शौक से अपने चंदू को कंधे पर बिठाए स्कूल ले जा रहा था? फिर वापसी पर में तुम्हें दिखाया था कि गामन किस तरह बेवकूफ़ों की तरह एड़ियाँ उठा उठा कर स्कूल की 4 दीवारी के ऊपर से अपने चंदू को पढ़ते हुए देख रहा था। हैं, कमली ना बनो मीर साहिब, वो वहाँ रुल जाएगी। मैं उसे हवेली में रानी बनाकर रखूँगी, बहुत पढ़ाऊँगी। मीर साहिब, तुम उसे अच्छा माहौल दे सकती हो, ज़माने भर की नेमतें दे सकती हो, मगर वो प्यार नहीं दे सकती जो गामन उस पर निछावर कर रहा है। वही चंदू माही उसके सामने आंसू से धुला हुआ चेहरा लिए खड़ी थी। उसका दिल मुट्ठी में आ गया। गालों पर हाथ रखे, पेशानी चूमी और बेइख्तियार सीने से लगाकर भींच लिया। उसने थोड़ी देर पहले बालों को दुरुस्ती से पकड़कर खींचना चाहा था तो बेटा हायल हो गया था। अब प्यार से बालों पर हाथ फेर रही थी तो बेटे का सर फख्र से बुलंद हो गया था। दुनिया ऐसे ही पल पल बदलती है, कभी उठाकर पस्ती में पटक देती है, कभी पलकों पर बिठाकर अर्श नशी कर देती है। फलक की बुलंदियां छूने वाली चंदू माही ने कहा, बीबी सैन, मेरी जान भी हाजिर है। उमर हयात चेहरा माँ के दूसरे शाने पर रख दिया। अम्मा, मुझे यकीन था कि सारी दुनिया भले मेरी दुश्मन हो जाए, आप मेरा साथ देंगी। बीबी ने दोनों को प्यार करके अलहदगी आहिस्ता से अलहदा किया और शाम तक घर पहुंचने का हुक्म देते हुए सेंध का रुख किया, जहाँ उमर की बहनें चहलकदमी कर करके थक कर जानी बैठकर महवे गुफ्तगू हो गई थी। माँ कमरे से अकेली निकली तो दोनों का दिल होल उठा। भागकर करीब आई, फिक्र से पूछने लगी। माँ के चेहरे पर शिकस्त तहरीर थी, मगर जुबान सब ठीक है का राग अलाप रही थी।
दोनों एक दूसरे को देखते हुए माँ के पीछे चल पड़ी। उमर हयात ने सुख की सांस ली। चंदू को चारपाई पर बिठाकर बोला, फिक्र ना करो, मैं हूं ना। इसने सर हिलाया। बैठकर बेध्यानी से डब्बों से खेलने लगी। वो बोला, चंदू माही, बीबी अम्मा दिल की बुरी नहीं। वो क्या है कि औलाद बगावत पर उतरा है तो सभी वालिदैन को गुस्सा आता है, उतर भी जाता है। गामन भी एक दिन सब कुछ भूल कर तुम्हें याद करने बैठ जाया करेगा। किसी की नजरों में गिरना और बेतुकीर होना चंदू माही के लिए नई बात नहीं थी। सर हिलाकर बोली, मैं समझती हूँ, तू मेरे साथ हवेली में रहोगी, पढ़ने के लिए मेरी बहनों के साथ रोजाना शहर आया करोगी। मेरी एक बहन मुल्तान में पढ़ती है, मैं देखूंगा। अगर मेरे घर वालों का रवैया नामुनासिब हुआ तो मैं उसके पास मुल्तान भेज दूंगा। अगर इसने ताउन न किया तो मैं तुम्हारी अलहदा रहाइश और तालीम का बंदोबस्त कर दूंगा, ठीक है। इसने उमर हयात को भरपूर अंदाज में देखा। लफ्ज़ लफ्ज़ सच्चाई अमेज था। इसकी मोहब्बत पर फख्र का एहसास हुआ। बोली, तुम मेरे साथ होगे जानती हूँ, मगर न जाने क्यों दिल में डर सा बैठा हुआ है। मैं हवेली को अपना घर समझूंगी, वैसे ही जैसे बाबा के घर को घर समझती थी, मगर कहीं ये ना हो कि मुझे फिर धुतकार कर निकाल दिया जाए। उमर हयात ने उसका हाथ थामा, चूमा। मोहब्बत पेशरफ्त का सबक सिखाती आगे बढ़ा। उसके चेहरे को हाथों में भरकर वारफ्तगी से बोला, मेरी मोहब्बत पर पहले यकीन न रखो, मगर अपने चांद जैसे चेहरे पर भरोसा रखो, अपनी आंखों पर यकीन रखो। इनका शिकार होने वाला उमर हयात कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा। अपनी हर परवाज के इख्तिताम पर सस्ताने के लिए इसी ताजमहल का रुख करेगा। वो उमर हयात की गिरफ्त से निकलना चाहती थी। दिन कम वक्त इसके लम्स को सराहने लगा था। शशोपन में मुब्तला होकर साकित खड़ी अपने वजी दीवाने को देखती रही। इसने माथे पर बल खाकर झुकी जुल्फों की लब को चूमा। बालों में जान पड़ गई। दीवाने ने बंद पलकों पर अपनी दीवान की बड़ी नरमी से शब्द की। आंखें जिंदा हो गई। वो टूटकर तोड़ने वाले के सीने से लग गई। लंबी लंबी सांसें लेने लगी, यूं जैसे बदन की जान सांसों की सीढ़ी पर चढ़कर एकदम बुलंद होने लगी हो। उमर हयात ने जज्बात से मगलूब आवाज में समझाया, चंदू, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत मुझसे जुदा नहीं कर सकती। उसने बात उचक ली। शरारत अमेज नजर से बोली, खुदा भी नहीं। वो ठिठक कर सोच में पड़ गया। भले चंदू का सवाल शरारत पर मबनी था, मगर सोच के कई दर खोल रहा था। इसने खुदा के बारे में बहुत कुछ सुन और पढ़ रखा था। बिन देखे यकीन की दौलत हासिल कर चुका था। जानता था कि खुदा के हुक्म के मुकाबिल में उसकी हस्ती बहुत कमज़ोर थी, मगर चंदू माही की शरारत भरी आंखों के वार को रोकना जरूरी था। बोला, खुदा सब कुछ कर सकता है, मगर तुमने ये सोचा नहीं कि अगर उसने मुझसे मेरी चंदू माही को छीनना चाहा तो मेरे दिल में इश्क की रमक क्यों पैदा करता। जवाब बड़ा तबाना था, सोच में पड़ गई। उसने थोड़ी को उंगली के सहारे ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, बस मुझे यकीन है कि खुदा ने मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत इसलिए पैदा की है कि वो तुम्हें पसंद करता है, तुम्हारी तारीफ को पसंद करता है। बीबी अम्मा ने ठीक कहा है, अभी हमारी शादी की उम्र नहीं, बस थोड़ा इंतज़ार मेरी जान। उधर तुम ग्रेजुएशन करोगी, इधर हवेली में तूतियां बजने लगेंगी। तूती शादी पर बजती है, ख्वाबीदा रात के सन्नाटे में जान डाल देती है, और जहां तक उसकी आवाज़ जाती है रात बेदार हो जाती है। चंदू के दिल के तार भी आने वाहिद में बज उठे। शर्म से चेहरा तमतमा गया। वो सी बातें करना चाहती थी, मगर बोल ना पाई और अजीब नजरों से उससे देखने लगी। वो दिल के बल पर बोला, चंदू, आई लव यू। वो खामोश रही। जब चाहने वाला आई लव यू कहे तो इसके दिल को जिंदगी देने के लिए यही जुमला दोहराना पड़ता है कि तुम्हें इतनी सी बात का भी इल्म नहीं। वो होले से बोली, गोया गुनगुनाई, आई लव यू। मोहब्बत का ये नामुकम्मल इजहार कारे इश्क में नई तवानाई डाल देता है। इनके जुनून पर दाख्ता बदनों को भी एक लहजा में करार सा आ गया। उमर हयात ने हाथ से पैकेट इधर उधर करके जगह बनाई, उसे नरमी से चारपाई पर लिटा दिया और बाहर वाला दरवाज़ा बंद करने चला गया। अभी शाम होने में कुछ घड़ियां बाकी थी। भले तिशंगी ज़्यादा थी, सैराबी जहाँ के लिए मोहलत कम थी, मगर जो साहतें मुयस्सर थीं इन्हें चूमकर अमर करना जरूरी था। आंखों पर बाजू रखे मुस्कुराती हुई चंदू माही के पहलू में आ गया। आंखों पर रखी उदास बांह पर झुककर चूमते बोला, तुम्हें पहली नजर देखने वाला उसान खता कर बैठता है और ऊट पटांग हरकतें करने लगता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था। जब हंगामे इंतशार का लम्हा बीत गया तब कफे अफसोस मनने लगा। तब तक तुम्हारा हुस्न का जादू अपना काम दिखा चुका था। चंदू, क्या तुम इस बात का एहसास है? उसने होले से इनकार में सर हिलाया। वो बोला, हाँ, क़यामत को क्या पता वो किस किस को जला डालती है ना? तुम्हें क्या पता तुम्हें देखने वाले पर क्या गुजरती है। बीबी अम्मा पर मेरी मिन्नत समाजत का कोई असर नहीं हुआ, मगर वो तुम्हारी शक्ल देखकर अपना गुस्सा भूल बैठी। वो दिल में घर कर जाने वाले अंदाज में चंदू से सरगोशियाँ कर रहा था, बता रहा था, बीबी अम्मा दिल की बहुत अच्छी हैं,
उससे बहुत मोहब्बत करती हैं। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें भी दिल से लगा कर रखेंगी। तुम शहजादी हो, तुम्हें शहजादियों की तरह रखेंगी। तुम परी हो, तुम्हें परियों की तरह पजीराई करेंगी। एक ज़रा गुस्से की तेज़ हैं, डांट डपट करे तो इनका हक समझकर कबूल करना। वो आहिस्ती से बोली, हाँ, माएँ ऐसी होती हैं, मेरी माँ भी ऐसी ही है। ताजा का ख्याल आते ही दिल से होक निकली। गामन का गुस्से भरा चेहरा चश्मे तसव्वुर पर सज गया। बोली, क्या तुम गामन को राजी कर लोगे? वो भी बीबी साईं जैसा बड़ा दिल रखता है। मैं पीर बख्श माछी वाले हादसे के नतीजे में पैदा होने वाले गलतफहमी दूर करने की कोशिश करूंगा। समझाऊंगा कि ऐसा कुछ नहीं था जैसा लोगों ने आकर इसके कानों में डाल दिया था। लोग बातों की राई और राई का पहाड़ बनाने में बड़े बेरहम होते हैं। वो यकीन है कि मेरी कोशिशों से वो एक न एक दिन सब कुछ भूल कर तुम्हें कलेजे से लगा लेगा। उमर हयात के लबो लहजे में तयक्कुन की मजबूत माला झनक रही थी। मीरजादे, तुमने शायद नहीं देखा था, मैंने देखा था कि मीरजादियाँ बड़ी नफरत से मुझे देख रही थी। मुझे हवेली में कबूल नहीं करेंगी। वो तरद्दुद आमेज लहजे में गोया हुई। नहीं चंदू, वो दिल की बहुत अच्छी हैं। देखना चंद दिनों बाद वो तुम्हें एक मिनट के लिए भी खुद से दूर नहीं होने देंगी। कि तुम्हें यकीन है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन है। हुस्न की आदत रही है कि वो इश्क को छेड़ने से बास नहीं आता। वो भी बास न आई। एक जरा मुस्कुराकर बोली, सोच लो, आदमी के बदलने में देर नहीं लगती। वो बिना सोचे बोला, सोच लिया, तुम भी सुन लो, आदमी के मरने में भी देर नहीं लगती। वो एकदम चौंकी, आंखों से बाजू हटाकर एक जरा खफगी से देखने लगी। फिर इसके होंठों पर हाथ रखने को बढ़ी। हाथ आधी मुसाफत तय करके रुक गया। अपनी मुस्कुराहट समेट कर हाथ की पुष्ट को देखने लगी। उमर हयात ने पूछा, क्या हुआ, रुक क्यों गई? कुछ नहीं, ऐसी बातें ना करो। मरने में इतनी देर जरूर लगा देना कि मेरी उम्र पूरी हो जाए और मैं तुम्हें मरता हुआ ना देखूं। उमर हयात ने उसका बाजू थाम कर साहिल तक पहुंचा दिया। फिर गालों पर रगड़ते हुए बोला, चंदू, क्या तुम उस स्कूल में पढ़ोगी जिसमें पहले पढ़ती थी? उसकी मुस्तबसराना आंखों में झांक कर बोला, वही जिसके गेट पर से मैंने तुम्हें पिक किया था। ओ हाँ। इसके आंखों में उलझन तैर गई। मगर मैं उस स्कूल में जाना नहीं चाहती क्योंकि हेड मिसेस साहिबा और मेरी क्लासमेट मुझे ताने देंगी। क्यों? वो चौंका, तुमने ऐसा क्या किया है? वो सोच में पड़ गई। उसने कुछ नहीं किया था, मगर वक्त ने उसके गले में बदनामी का तोक डाल दिया था। उस स्कूल में स्कूल बैग उठाकर दाखिल होने का ख्याल बड़ा रूह फरसा था। नफी में सर हिलाते बोली, कुछ किया या नहीं? बदनाम हो गई हूँ। उमर हयात ने फौरन दिलासा दिया, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी मजबूरी समझ गया था। बोला, शहर में और भी कई गर्ल्स स्कूल मौजूद हैं, प्राइवेट इदारे भी हैं। जिस स्कूल में फायदा पढ़ती थी उस स्कूल का माहौल मुझे बहुत पसंद है, वहीं दाखिला ले दूंगा। ठीक है। फायजा इसकी तीसरे नंबर वाली बहन थी। इसे 9वीं क्लास में ही बगैर किसी वजह के तालीम को खैरबाद कह दिया था। उसे हुसूल तालीम से बिल्कुल रगबत नहीं थी। चंदू खुश हो गई। उमर हयात बोलने के साथ साथ कसरे हुस्न में कदम कदम बढ़ रहा था। उसने बाल खोलकर आधे उसके चांद चेहरे पर, आधे अपने चेहरे पर फैला दिए थे। इसके चेहरे पर सिरकती हुई जुल्फों को कभी हाथ से गर्दन की तरफ धकेल देता, कभी उसकी आंखों पर पट्टी की सूरत इकट्ठा कर देता। इस खेल में थकन का एहसास नहीं होता। शिकस्त और रेख्त का अमल शुरू हो जाता है। उमर हयात को खबर ही न हुई कि कब इसकी वारफ्तगी ने चंदू माही को तोड़ फोड़ कर बखेर दिया। इजाजत तलब नजरों से देखते हुए बोला, चंदू आ जाऊं? चंदू चौंकी, हैरान नजरों से उसे देखने लगी। कुछ कहते कहते रुक गई। एक मुख्तसर से तवक्कुफ के बाद बोली, कहाँ? वो दिल तक तो पहुंच चुका था, जान पर साया कुशा हो गया था, फिर भी आने की इजाजत मांग रहा था। तजस्सुस ने सर उभारा। पूछने की इजाजत शर्म की दिल ने ना दी। नहायत आहिस्गी से आंखें मूंद कर इजाजत दे दी। वो जान की आने की इजाजत पाते ही पहुंच गया। तब चंदू की समझ में आया कि वो जलते हुए होंठों पर अंगारे रखने के लिए और करीब आना चाहता था। वो होंठों पर हाथ रखकर तड़पी और उसकी ग्रिप से निकल गई, दीवार तक गई। एक चारपाई दीवार के साथ पहलू के बल खड़ी की गई थी। उसे थाम कर रस्सी आवाज में बोली, तुम्हें तो जरा शर्म नहीं आती? हवेली में ले जाकर और दिलेर हो जाओगे। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? वो अपनी फतेहयाब शिकस्त को सीने से लगाए चारपाई पर करवट बदल गया। औंधे मुंह लेटा तो 2 छोटे डिब्बे पिछले में चुभे। उसे मतलब परवाह न हुई। घटती बढ़ती सांसों के बीच बोला, चंदू बस इतना सा सहारा देती रहोगी तो 2-4 साल क्या, उम्र भर इंतजार कर लूँगा। वो एक अदा से बोली, नहीं, हवेली में ऐसा नहीं चलेगा। मैं मर्द हूँ, सीधी तरह हाथ नहीं आओगी तो उंगलियां टेढ़ी कर लूँगा, जबरदस्ती भी करना पड़े तो कर गुजरूंगा। वो जवानी की दहलीज पर खड़ा था। अभी भरपूर मर्द नहीं था, मगर अपनी मर्दानगी का भरपूर अंदाज में इजहार कर रहा था। जता रहा था कि उसकी मलकियत बन चुकी है। मलकियत के साथ कोई भी सलूक रवा रखा जा सकता है। इसकी आशुफ्तगी चंदू के दिल से खेल रही थी। फखर से सर बुलंद हो गई। बोली,
तंग करोगे तो बीबी साईं को बता दूंगी। वो उछलकर चारपाई से उतरा, बचकाना अंदाज में बोला, ना बाबा, ये जुल्म ना करना, मैं तुम्हें बुलाऊंगा भी नहीं। वो हंसते हुए पलटी, ऐसे में धोखा खा गई। उमर हयात तब तक करीब पहुंच चुका था। चंदू के संभलने तक इसके वजूद को अपनी बाहों में भरकर जारहाना अंदाज में तोड़ने लगा। इसकी बाउली और इंजाम से बेखबर उमर उसका साथ दे रही थी। चंदू का बदन रेत की दीवार साबित हो रहा था। दीवाने की आशुक्ता बेसाख्तगी इतनी जानदार मगर गैर मुतवक्को थी कि चंदू लम्हों ही में चंदू की मुज़ाहमत दम तोड़ गई। जब उमर हयात ने एक हद पर जाकर अपनी पेशकदमी रोकी, उसे खुद से अलहदा किया, तो वो रेत की दीवार की तरफ फर्श पर ढेर हो गई, बुरी तरह हाँपने लगी। उमर हयात ने दोनों हाथ सर से बुलंद किए, दहलीज थामी और खुद पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ रहकर बोला, बस बढ़िया ही धमकियां देने वाली। बीबी सैन को बताऊंगी तो हर बार ऐसा ही सलूक करूंगा। वो घुटनों पर थोड़ी टिकाए कनखियों से उसकी पुश को घूर रही थी। वो सोच रही थी कि उसे एकदम क्या हो गया था। उमर हयात ने उसे मारा, पीटा, न डांटा, फिर भी वो अदमुई कैसे हो गई। जब उसे स्कूल से अपने दोस्त के खाली घर ले गया, तब इसकी मारपीट ने यूं भी बेहाल नहीं किया था। आंखों में एकदम प्यार की अमृत जोत जाग गई और वो दिल में बोली, हाय मीरजादे, तुम कितने अच्छे हो। काश बीबी सैन हमारे दरमियान हायल न होती और इस खूबसूरत दिन की कभी शाम न होती। इसकी उम्र अभी इतनी पुख्ता नहीं हुई थी कि समझा देती कि जिंदगी के हर दिन पर शाम उतरती है। इस शाम के उतरते ही उमर हयात के पीछे चलती हुई डरती डरती हवेली में दाखिल हुई। बीबी सैन ने सर पर हाथ फेरा। उमर हयात की बहनों ने सर नजरों से घूरा। उसकी हैसियत उस पर अया करने की कोशिश की। उमर हयात ने समझाया था कि चंदू चंद दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सोचकर उसे नजरें झुका ली। आंख ओझल, पहाड़ ओझल, चुभने वाली नजरें हट गई। बीबी ने बारी बारी सभी बहनों से कहा कि वो चंदू को अपने कमरे में ले जाए। वो चंदू को बेटियों की तरह अलहदा कमरा देने से गुरेजा थी, क्योंकि घर में चोर बैठा हुआ था। काया चोर जवान तन्हाई का फायदा उठाकर सबकी आंखों में धूल झोंक कर अलहदा कमरे से बोझ को चुरा कर ले जा सकता था। ये सोचकर उसने सभी पर जोर दिया। बड़ी बहन का नाम सफिया था, मुल्तान के कॉलेज में पढ़ती थी। उसने मुंह बनाकर कहा, बीबी अम्मा, आप जानती कि मैं किसी की मौजूदगी में सो नहीं सकती, आप इसे नूरीन के हाथ ठहरा देती। उससे छोटी नूरीन शुजाबाद के कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी। तो नक्कर बोली, अम्मा बेहतर यही होगा कि इसके लिए एक सर्वेंट क्वार्टर खाली करवा लें। सबसे छोटी मिसबा, जिसे घर में सबा कहा जाता था, नखवत से बोली, मेरे एग्ज़ाम सर पर है, अगर मुझे डिस्टर्ब किया गया तो मैं फेल हो जाऊंगी, फिर मुझे कोई गिला ना दे। हाँ। चंदू तज़हीक और अहानत के बार तले दबी दबी बारी बारी कनखियों से उमर हयात की बहनों को देख रही थी। बीबी सैन ने फायदा की तरफ देखा। वो दिलचस्पी अमेज नजरों से चंदू को देख रही थी। बोली, मेरा कमरा सबसे छोटा है, मगर मेरा दिल सबसे बड़ा है। इसका बेड मेरे कमरे में लगा दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। बीबी ने इत्मीनान की सांस ली। नौकरानी को आंख का इशारा किया। वो घुटनों पर हाथ रखकर उठी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। चंदू ने फायजा का हाथ थामा। बोली, चलो अपने कमरे में चलकर बैठकर बातें करते हैं। ये जालिम समाज है, ज्यादा पढ़ लिख गया इसलिए अनपढ़ दिल के जज्बात नहीं समझता। चंदू ने बीबी सैन और उमर हयात को बारी बारी इजाजत तलब नजरों से देखा। इजाजत मिल गई। फायजा चहकी, चलो ना, मैं भी तो देखूंगी, आखिर भाई की आंखों ने ऐसा क्या देख लिया है कि बेईमान हो गई। बीबी ने मलामत अंगेज नजरों से घूरा तो वो दबी दबी हंसी उछालती चंदू को खींचती हुई नौकरानी के पीछे चल दी। उसका कमरा फर्स्ट फ्लोर पर सब बहनों के आखिर में वाक़ था। मीर जफर हयात ने 4 बहनों के कमरे एक ही सीध में तामीर कराए थे। फायजा का कमरा 10x12 फीट का था। कमरे के अकबी हिस्से में एक तो बाथरूम जबकि दूसरी तरफ ड्रेसिंग बॉक्स वाक़ था। दोनों के बीच एक कम चौड़ा दरवाज़ा अकबी बालकोनी में खुलता था। ये बालकोनी दूसरी बहनों की बालकोनी से छोटी थी, जिसका आधा हिस्सा आम के बड़े पेड़ की एक सेहतमंद शाख ने घेर रखा था। नौकरानी और फायजा ने मिलकर बथेरी कोशिश की, अनगिनत तरह की आजमाई, मगर चंदू के बेड की गुंजाइश न निकली। चंदू ने कहा, मैं उधर कालीन पर जा सोऊंगी। फायजा ने कंधे उचकाए। नौकरानी ने सोफा हटाने और दीवार और बेड के दरमियान चंदू का बिस्तर लगाने में देर नहीं की कि दोनों के लिए दूध लेने चली गई। फायजा ने पूछा, मेरा कमरा पसंद आया? चंदू दीवार से टेक लगाकर बैठ के कमरे का जायजा लेने लगी। अमीराना आराई से मरूब होकर बोली, बहुत खूबसूरत है। फायजा बोली, तुम भी बहुत खूबसूरत हो। मैं अगर मर्द होती तो अब तक बता चुकी होती कि तुम कितनी खूबसूरत हो। वो झींप गई। शाम ढलने से कबल फायजा के भाई की मर्दानगी ने इसके हुस्न की कदर मंजिलत को जिस तरह तस्लीम किया था, वो अंदाज भूलने वाला नहीं था। फायजा के लबों से तारीफ अच्छी लगी। सर झुकाकर बोली, तुम भी तो किसी से कम नहीं हो। नौकरानी दूध से लबरेज 2 गिलास ट्रे में रखकर लाई। इसके पीछे पीछे उमर हयात भी कमरे में दाखिल हो गया। सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठकर बोला कि घर में और बेड नहीं था। फायजा ने जल्दी से कहा, ऐसी बात नहीं है भाई, दरअसल कमरा छोटा है, दूसरे बेड की जगह नहीं बनी, इसलिए कालीन पर बिस्तर लगाना पड़ा, मगर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। एक रात चंदू नीचे सोएगी, दूसरी रात मैं,
कहते हैं कि फर्श पर सोने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, क्यों चंदू? उसने तंबीही अंदाज में सर हिलाया, बोला, फायजा इसका ख्याल रखना, इसे तंग ना करना, वरना मैं तुम्हारी चुटिया खींच लूंगा। वो कनखियों से चंदू माही को देखकर हंसी, बोली, तंग तो करूंगी, जरूर करूंगी, तुम कर लो जो करना है। एक बात है जिसकी खुशी हो रही है कि चंदू के बहाने ही सही तुमने मेरे कमरे में कदम तो रखा, उम्मीद है आइंदा भी बहाने बहाने से आते रहोगे। इसकी आंखों में शरारत कूट कूट कर भरी हुई थी। उमर हया चलन में खड़ा फायजा को बेबसी आमेज अंदाज में देखता रहा, फिर पलटकर नजरों से ओझल हो गया की थी। सोने की लेटी तो आंखों से नींद रूठ गई। फायजा पहलू के बल लेटी उसे बगौर देख रही थी। शायद उसने चंदू की बेचैनी महसूस कर ली थी, इसलिए कहने लगी, लगता है तुमने शाम का खाना नहीं खाया। इसने इस बात में सर हिलाया। फायजा बेड से उतरी और दरवाजा खोलकर किचन की तरफ चली गई। 10-15 मिनट बाद इसकी वापसी हुई। वो इसके लिए खाना गर्म कर लाई थी। चंदू के सामने ट्रे रखकर इसके बिस्तर पर आलती पालती मारकर बैठ की बातें करने लगी। अपने बारे में बताने लगी थी कि उसे क्या पसंद था क्या नापसंद। वो खासी चालाक और ज़ुल्फ़हम लड़की थी। ऐसी लड़कियां पढ़ाई में बहुत अच्छी होती हैं, मगर उसने न जाने क्यों पढ़ाई छोड़ दी थी। इसने गुफ्तगू में एहतियात मलहूज रखी थी कि कोई ऐसा मौजूद ज़ेर बहस न आए जो चंदू को दुखी कर दे। वो चंदू को ज़हनी कोफ्त या शर्मिंदगी देने से गुरेजा दिखाई देती रही। खाने से फारिग हुई, बाथरूम में गई, बाहर निकली तो बालकोनी के खुले दरवाजे ने मुतवज्जो कर लिया। देखा तो फायजा रेलिंग पर झुकी दिखाई दी। कमरे की ट्यूबलाइट की रोशनी आम के पेड़ तक फैलती थी। आगे अंधेरा था। फायजा उजाले और अंधेरे की बेबसगी के मुकाम पर दुपट्टे से बेनियाज खड़ी थी। इसके गैर तराशीदा बाल बहुत घने और चमकदार स्याह थे, जो हवा से उलझकर इसकी कमर पर नागन की तरह इधर उधर बलखा रहे थे। चंदू बेख्तियार बालकोनी में आ गई। दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी होगी, धीरे से बोली, फायजा तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं। फायजा चौंकी, गर्दन को थोड़ा सा मोड़कर उसे देखने लगी, बोली, हाँ बीबी अम्मा, जुमा के जुमा मेरे बाल लस्सी और मुल्तानी मिट्टी से धोती हैं। क्या सभी बहनों का सर ऐसे ही धोती हैं? नहीं, सिर्फ मेरे बाल। इसने बताया, बाकियों को बाल बनाने का शौक नहीं, बड़ी बाजी बाल कटवाती है। छोटी के बाल तो मुंह ही होकर टूटने लगते हैं। राजा हमेशा चंदू के बाल लस्सी और मुल्तानी मिट्टी से धोया करती थी। कभी कभी जामुन के पत्ते चटनी की तरह कूटकर मुल्तानी मिट्टी में मिला लिया करती थी। इससे बालों की चमक में सोना पिघलकर शामिल हो जाता था। वो हसरत आमेज लहजे में बोली, मेरे बालों को मेरी माँ ऐसे ही धोया करती थी। फायजा ने इसका दुपट्टा खींच लिया, बाल खोलकर हाथों पर लेते हुए प्यार से बोली, वाओ कितने नरम है ये रेशम के सुच्चे तार। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा सर धो दिया करूंगी। नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा, वो खुद ही धो लिया करूंगी, वो जल्दी से बोली। फायजा ने बाल छोड़ दिए। हवा ने अपनी गिरफ्त में लेकर इधर उधर बखेर दिए। इससे चंदू की कमर में बाजू हमाइल किया। एक हाथ से आम के पत्तों को छेड़ते हुए बोली, तुम और मैं दोस्त बन जाती हैं, ठीक है ना? दोस्त एक दूसरे का हाथ बटाया करते हैं। तुम मेरा और मैं तुम्हारा सर धो दिया करूंगी, ये तो मुनासिब रहेगा ना? इसने ममनूनाना अंदाज में सर झुका लिया। फायजा फरबा वजूद की मालिक थी, सेहतमंद थी। इसके भरे भरे वजूद ने चंदू को सुकून भरा लम्स दिया तो दिल उथल पुथल होने लगा। फायजा अच्छी लगने लगी। अपने पेट पर फायजा के गुदाज हाथ की हल्की सी कपकपाहट भी अच्छी लगने लगी। इसने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा तो सुकून का एहसास बेदार हो गया। अच्छी लगने वाली कह रही थी, चंदू बाबा ने बड़े शौक से बहनों के लिए कमरे बनवाए थे। ये बालकोनी देख रही हो ना, ये जन्नत की खिड़की है। अभी अंधेरा है, सुबह के उजाले में यहाँ खड़ी होकर इन दरख्तों को, तहद नगाह फैली हुई सरसब्ज फसलों को और लॉन के फूल पौधों को देखोगी तो हैरान रह जाओगी, दिल खुश हो जाएगा। आमतौर पर बड़ी खुशगवार हवा छेड़ती रहती है, मगर जिन दिनों फसलों पर स्प्रे का सीजन होता है तब यहाँ खड़ा नहीं हुआ जाता, बहुत बदबू आती है। और चंदू एक बहुत बड़ी कमी है जिसकी वजह से ये सारा नज़ारा एकदम बेमानी सा लगने लगता है। वो हैरत से मुस्तफसिल हुई। वो कौन सी कमी है?